है और जाना है। मैंने तेरे आंसुओं को भी देखा है और तेरी खुशी को भी देखा है। तू मेरा बच्चा है, मैंने अपनी छाप तुझ पे लगा दी है। हालेलुया। मैंने तुझे कई नामों से बुलाया है, बरअब्बास, बारनबास, Caleb. I have given you many names, but much more than that, I call you precious sweetheart, the love, the apple of my eye. You have no idea how much I love you. You have no idea just how pleasing you are to me. You, my child, are a special chosen vessel. You are not here by accident. I have a great plan for you. Oh, thank you, You have Jesus. so many times cried out to me, Lord, reveal yourself to me. Thank you, Jesus. Reveal my purpose. Your prayers have not gone unanswered. Please know that I have a time for everything. Amen. And there are things that I will reveal to you in my time. Stay faithful in that which I have given you. I have given you a loving heart. I have given you a beautiful smile that can dispel darkness. I have given you a heart of help. Be the light in the dark place. Be the help that only you can be. Bring a smile to those who are around you who so need to know my love. And know that in my time and in my way, I will reveal myself to you and I will use you in greater ways. But first, stay faithful where I have placed you, in what I have given you. Praise. I know you, I love you, I put my seal on you. These words will come to pass. I just bless it right now in Jesus' name. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Prashant. God bless you. Thank you very much. That's the intercessory prayer खत्म होते ही परमेश्वर ने अपनी मूवमेंट दिखाई और आगे भी आप देखेंगे जितने चीजों के लिए आज प्रेयर हुई है चमत्कारी तरीके से आप उनका आंसर्स देखेंगे। खास तौर से मुझे जो मेरे दिल को छुई है प्रार्थना कि एक समय ऐसा आएगा, आना चाहिए अगर हम लोग बार बार इसे कन्फेशन करेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों हमारे ज़बान के वश में है। कि दिल्ली शहर सबसे साफ और सुथरा जैसे इंदौर है इस वक्त इंडिया में, तो मुझे बड़ी कभी कभी कोफ्त महसूस होती है ये बनेगा। ना केवल ये चर्च, ये मैसेज लाइव है इस वक्त, आपके इंटरसेसरी प्रेयर्स भी लाइव है और बहुत से लोग इस पे आमीन बोलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है आज मुझे याद है कि एक लड़की दिसंबर की भयानक ऐसी सर्दालू रात को मेरे बेटे के साथ आई थी, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करके रामबाग पैलेस होटल जहां मैंने नौकरी करी, वहां मेरे बेटे ने बड़े शान और शौकत से गाया और एंटरटेन किया। और उस वक्त वो डरी हुई सहमी हुई सी लड़की थी। फिर हमने उस पर, प्रतीक ने उस पर बड़ी मेहनत करी और फिर पवित्र आत्मा का दान उसने हासिल किया और फिर उसके बाद उसने वचन हासिल किया। और आज वो ऐसे स्टेज पे है जहां परमेश्वर बोल्डली, और मुझे परमेश्वर ने ये बताया है मेघना तुम्हारे लिए, दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेटिक वर्ड दैट माय चाइल्ड I have given you the spirit of boldness, and I know that you never compromise with wrong things and the things which is opposite to my principle and which are opposite to my word, matchless and powerful word. Yes, you have no place of compromise with them. So keep it up and speak my word boldly and in front of all these people. And oh, heaven and earth, you are my witness that a day will come when miracles will flow from your lips and hands, and people will receive abundance of blessings and miracles and healing, said the Lord. And as you have taken the step, and as you are hearing me in the middle of the night, very early in the morning, I will talk to you. Always be ready to respond, and you will see. You will be blessed this year, said the Lord. And I will continually talk to you, said the Lord. In Jesus' name. Thank you. Thank you very much.
So it is my honor. देखिए एक बाप के लिए तो आप सभी, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, तो मैं भी किसी का पक्षपात नहीं करता। आप जानते हैं यहाँ पर छोटे से छोटे लड़की को, छोटे से छोटे इंसान को हमेशा मैंने यहाँ पर खड़ा होकर इनकरेज किया है और आप लोगों ने टीच एंड प्रीच की है। आज मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए, इंट्रोड्यूस तो खैर आप हैं ही, लेकिन उसको बुलाते हुए फकर महसूस होता है। और आपको याद होगा कि एक सब्जेक्ट मैंने आपको आज से 5 हफ्ते पहले सिखाया था या 6 हफ्ते पहले, और आज परमेश्वर उससे रिपीट कर रहा है डिफरेंट दृष्टिकोण से। सो कम ऑन बिगनर्स एंड कैसे हैं? आनंदित है। Yes, God is faithful. जो सब्जेक्ट मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ वो कुछ नया सब्जेक्ट नहीं है। हर विश्वासी के दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है कि परमेश्वर कैसे बात करता है। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, बट उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड खींचना चाह रही हूँ। आप लोगों को हाजिरा के बारे में पता है? हाजिरा कौन थी? इब्राहिम की दासी। अब इब्राहिम की दासी, और फिर उसके साथ अन्याय हुआ था। उसके साथ क्या अन्याय हुआ था? उसको घर से निकाल दिया गया था। उसको निकाल दिया गया था। और जब वो अपने बेबी के साथ रेगिस्तान में घूम रही थी और रो रही थी और पानी के लिए परमेश्वर से मांग रही थी, तब प्रभु ने उससे बोला कि हाजिरा, मैं आई एम द गॉड हु सीज, मैं वो परमेश्वर हूँ जो देखता हूँ। सो हमारा जो परमेश्वर है वो एक जीवित परमेश्वर है। वो ना केवल देखता है, वो ना केवल हमें देखता है, वो ना केवल हमारी जिंदगियों में इन्वॉल्व रहता है, पर वो हमसे बातचीत करता है। आमीन। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनसे परमेश्वर, आप कह सकते हो कि प्रभु मुझसे बात करता है, प्रभु ने मुझसे बात की है? ओके, लवली। याशिका, प्रभु ने आपसे कैसे बात की है? वचन के द्वारा। हमेशा केवल वचन के द्वारा नहीं, कभी वचन के द्वारा, कभी जैसे कहीं जा रहे हो तो माइंड में अचानक आमीन। से बात आती है कि तू ऐसा कर, तो वो अचानक से होगा। अर्जुन भाई, आपके साथ कैसे परमेश्वर ने बात की है? सिस्टर, मेरे साथ भी परमेश्वर ने वचन के द्वारा भी बात करी। और कई बार मैं जैसे गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ तो पहले से ही परमेश्वर मुझे मतलब सूचित कर देता है, मतलब ऐसा मन में मेरे ऐसा आ जाता है कि इस रास्ते पे मत जाना, इस पे चला जा। तो मतलब इस तरह वचन कहता है whether you turn to the left or to the right, this is my way, I will show you, this is my way, इस रास्ते पे चला। सो लव यू। पास्टर सैम, प्रभु आपसे कैसे? आमीन। आपके पास तो चिट्ठा होगा। हाँ, मैं पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं याशिका और अर्जुन के साथ सहमत हूँ। कई बार मेरे पास वचन आता है, अचानक से वचन आता है। आजकल, पहले तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मन में आवाज आती थी, और फिर मैं शायद गलती भी करता हूँ कि मैं कहता था परमेश्वर, मैं अभी नया हूँ, 85 की बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किसी तरह ठोस प्रमाण के साथ मुझे बता, और वो बताता था। और क्या कहते हैं, आजकल क्या होता है कि जैसे अचानक से टिंग की आवाज आती है, तो मैं सोचता हूँ मैसेज आया फोन पे, तो मैं वो वर्ष होती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि वो खाली वर्ष नहीं है, इसमें कुछ मेरे से परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उसको ऊपर से लेके नीचे तक इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ता हूँ, और वहां से सिलसिला शुरू होता है कि मेरे माइंड के अंदर, मेरे मन में, मेरी आत्मा में आवाज आने लगती है। लेकिन कई बार मैं, और इसको आप कोशिश मत करना कि वो आपके साथ भी ऐसा होगा, यहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा डेंजरस हो जाता है कि कई बार मुझे आवाज, मैंने कई बार ऑडिबली आवाज सुनी है, जैसे बैठ के वो मेरे से बातचीत कर रहा है। और एक रास्ता है परमेश्वर का कि मैं सोया हुआ होता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में पूरा एक पिक्चर जैसे चल रही है, वो चल रही होती है, जो मुझे याद
याद रहने का मतलब है, मैं समझ जाता हूँ कि ये परमेश्वर था जो रात भर मुझे इस बारे में, कल ही रात को मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो जरूरी नहीं आपके साथ ऐसा हो, बट डेफिनेटली द सेंटर पॉइंट जो याशिका ने और अर्जुन ने बताया है, माइंड। बेसिकली मैं ये कहूँगा। यूहन्ना 10:27 कोई पढ़ ले प्लीज। ये फर्स्ट व्यू में ये पत्री पढ़नी है, फिर यहाँ सुसमाचार, सुसमाचार गॉस्पेल 10 का 27। 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, आमीन। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। So my sheep hear my voice. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। That's right. और परमेश्वर का हृदय ये है कि उसकी एक एक भेड़ उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को पहचाने और उसके साथ एक बहुत करीबी रिश्ता बनाए, राइट? अब ये मेरे लिए थोड़ा अजीब है क्योंकि मैं आपको आज मेघना सेन की कहानी मेघना सेन के जुबानी सुनाने वाली हूँ। ये थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, पर मैं क्या करूँ? मेरा एक प्रभु है जिसने मुझे बोला कि अपने जीवन में से किस तरह मैंने तेरे जीवन से बातें की वो तो लोगों को बता, ताकि वो सुने और समझें कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, राइट? सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं और कुछ लोग शायद नहीं जानते, तो मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स फौज में डॉक्टर थे। मेरा पूरा जीवन कभी 3 साल यहाँ, कभी 3 साल वहाँ ऐसे गुजरा। आई थिंक मुझे पहले नहीं पता था, बट आई काइंड ऑफ ग्रू अप प्रिविलेज्ड। मैंने कभी भूख नहीं देखी जो जाहिर है। लाइक परमेश्वर बहुत बहुत लैविश था अपने प्यार में मेरे साथ, जब मैं उसे नहीं जानती थी। और फिर मैं आई केम टू दिल्ली इन 1995 कॉलेज में पढ़ाई के लिए, और जिस साल मैं आई, मैं यहाँ आई थी जुलाई में, और दिसंबर में मेरी मुलाकात प्रतीक से हुई। तब मैं अविश्वासी थी और हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे। मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी और प्रतीक बहुत ही पतले थे, उनके जितने मेरे लंबे बाल हैं उतने लंबे बाल थे। बहुत ठंड का दिन था वो, December 27, many years ago, ओके? और मैं तब 17 साल की थी और मैं प्रभु को नहीं जानती थी, और प्रतीक ने अपने सर पे कोकोनट ऑयल लगाया हुआ था और उनके बाल बिल्कुल फ्रोजन थे, ओके? And I was like, that's a lot of gel. No, this is coconut oil. It was frozen in the Delhi winter. And मैंने प्रतीक को, so nothing, like Pratik is a very good looking man. He was a very attractive boy. But that was not what attracted me. In my head, the minute I saw Pratik, एक आवाज आई कि यही वो इंसान है जिसके साथ तुम अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने वाली हो। मैं प्रभु को नहीं जानती। So मेरे दिमाग में ये जब ये आवाज आई बहुत स्ट्रॉन्ग, with a guitar. I mean, he's sweet and all that, but I don't know. Let's see. And वो बात नहीं खत्म हुई. So अब मुझे पता है कई साल बाद कि वो प्रभु की आवाज थी। अब प्रभु ने उससे पहले मुझसे कभी बात की नहीं की, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये याद है कि जैसे ही मैंने प्रतीक को देखा, it was not love at first sight. It was not sight. It was a voice in my head that went that this is the person that you will spend the rest of your life with. अब ये प्रभु की करुणा है कि ये बहुत अच्छा आदमी निकला और बहुत ही प्यारा इंसान है। ये प्रभु की करुणा है, नहीं तो क्या पता he could have been a Khattu also.
but God was just very kind to me. और प्रतीक ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया. So from the time I was about 18, मेरी जिंदगी में 2 लव अफेयर्स पैरेलल चलते आ रहे हैं, प्रतीक and प्रभु. Now Pratik has not always done exactly how I would like him to behave, like how I would like him to behave, but Jesus has always been supreme. Praise the Lord. He's always been very good. Pratik is a superb man. Please understand my heart. I love him with all my heart. He's the love of my life. But Jesus is one step further. जैसे हम सबके जीवन में होना चाहिए, right? So ये बहुत पुरानी बात है. जब प्रतीक और मैं सबसे पहले मिले थे तब सेलफोन्स नहीं होते थे उन दिनों में. हम इतने बुढ़े हैं. तो प्रतीक मुझे, मैं हॉस्टल में रहती थी. प्रतीक मुझे कभी कभी हॉस्टल में फ़ोन करते थे, या प्रतीक जब अपने प्रैक्टिस पे जाते थे, उनके घर में फ़ोन नहीं था, तो ऐसी थोड़ी मोड़ी बात होती थी. फिर एक टाइम आया जब प्रतीक के घर में फ़ोन आया, लैंडलाइन लगी. और जब लैंडलाइन लगी तब मैं कॉल करती थी, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियां रहती थी, और एक लैंडलाइन थी. तो आप सोचिए, पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड सब कॉल कर रहे हैं और एक ही लैंडलाइन. तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सुनो, अब मेरे पास लैंडलाइन है, आप मुझे फ़ोन कर सकती हो. ठीक है. और प्रतीक इतने क्यूट थे. प्रतीक ने मेरे लिए खूब सारे सिक्के भी रखे. ही कलेक्टेड अ होल बंच ऑफ सिक्कास. और हमारे हॉस्टल के बाहर एक छोटा सा एक पे फोन था, तो मैं सिक्का डालती थी और मैं प्रतीक को कॉल करती थी. फिर 3 मिनट हो जाते थे, फिर एक सिक्का डालती थी. आप में से बहुत से लोग शायद जानते ही नहीं है पे फोन क्या है. एक जमाने में ऐसे फोन होते थे जिनमें आपने सिक्का डालना होता था और 3 मिनट के लिए आप बात कर सकते थे. राइट. प्रतीक ने मेरे लिए इतना बड़ा एक थैला सिक्कों का दे रखा था. तो मैं प्रतीक को कॉल करती थी. और मैं बातूनी हूँ, ये सब जानते हैं. तो मैं कॉल करती थी और कोई बोलता था हेलो, और मैं बोलती थी हाय, लिसन, यू नो व्हाट हैपेंड टुडे, ओह गॉड, दैट वुमन, यू नो शी डिड दिस. एंड मैं अपनी पूरी कहानी कर देती, मतलब शुरू, लाइक फॉर 5 मिनट्स आई वुड हैव स्पोकन. और फिर आवाज आती थी, रुको मैं राजा को बुलाता हूँ. तो मैं किससे बात कर रही थी? दोनों की आवाजें मिलती थी उस टाइम फोन पे. मेघना को बहुत बेवकूफ बनाया. हाँ, ओह अच्छा. फिर और मैं बताए जा रही हूँ और मैं इतना एम्बैरेस हो गई थी. अब अगर पापा प्रतीक का फोन उठाएंगे तो मैं कंफ्यूज नहीं होंगी. मुझे पता चलेगा कि ये प्रतीक नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने प्रतीक के साथ अपनी जिंदगी के बहुत साल गुजारे हैं, 27 साल गुजारे हैं. सो अब मैं कंफ्यूज नहीं होंगी. उसी प्रकार परमेश्वर आपको उस स्टेज पे लाना चाहता है कि जब वो बोले आप उसकी आवाज को जानो और उसकी आवाज को पहचानो. क्या ये हमेशा पॉसिबल है? इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल. बट परमेश्वर चाहता है कि ये जो हमारा सफर है, ये जो हमारी जिंदगी है, एक सफर है. और वो चाहता है कि उस सफर में हम उसका हाथ पकड़ के उससे बातचीत करने की कोशिश करें और उसकी आवाज सुनने और पहचानने की कोशिश करें. जब मैं छोटी थी, जब भी मैं सड़क क्रॉस करती थी, तो मेरे पापा हमेशा मेरा हाथ पकड़ के क्रॉस कराते थे. सो ऑटोमेटिक हो गया कि जब अब मैं इतनी बड़ी हूँ, अभी भी अगर मेरे को सड़क क्रॉस करना होता है तो मैं प्रतीक का हाथ पकड़ लेती हूँ, या अगर पापा मेरे साथ होते हैं मैं अपने डैड का हाथ पकड़ लेती हूँ. अब मेरे बच्चे हैं तो मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ. प्रभु चाहता है कि आप पूरी जिंदगी ऐसे ही उसका हाथ पकड़ के, अच्छे समयों में, बुरे समयों में, ठीक ठाक समयों में आप उसकी आवाज को जाने और पहचाने. राइट. अब ये जो हमारा सफर है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग, आप में से किसी ने एक लंबा रोड ट्रिप किया है? रोड ट्रिप हम गाड़ी में जाते हैं, सब बातचीत करते हुए जाते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है. जब हम रोड ट्रिप पे जाते हैं, प्रतीक, रिया, रे और मैं, तो ये मेरी पूरी फैमिली बहुत हैवी मेटल कहानियाँ सुनने वाली है. और मेरे लिए स्पेशली प्रतीक फिर बोलेंगे अरे मॉम के लिए एक सॉफ्ट गाना भी डाल देना, तो एक मेरे लिए सॉफ्ट गाना डाला जाता है. तो हम जब रोड ट्रिप पे जाते हैं, शुरू में हम सब बातचीत कर रहे होते हैं, अरे ये अब ये करेंगे, हम भीम पर बजेंगे, फिर ये करेंगे,
जब हम गुड़गांव से भीमताल जब जा रहे होते हैं, अक्सर वो 6 घंटे का रास्ता, कभी 8 घंटे का रास्ता होता है। पूरे रास्ते हम बातचीत नहीं करते। शुरू में हम बातचीत करते हैं, फिर बीच में अचानक से कोई बोलता है भूख लग रही है, क्या खाएं, फिर से बातें होंगी, फिर हम चुप हो जाते हैं, फिर हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं, फिर अचानक से हम उस गाने के बारे में बात करते हैं। बट फ्रॉम पॉइंट ए इन गुड़गांव टू पॉइंट बी इन भीमताल हम पूरे रास्ते बातचीत नहीं करते हुए जाते। हमारा ये जीवन एक सफर है, और हर वक्त अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे या आप उसकी बात हर वक्त सुनते रहें, ये पॉसिबल नहीं है। आपके मसीही जीवन में बहुत सारे पीरियड्स ऑफ साइलेंस होंगे, जब आप चाहोगे कि परमेश्वर अब तो बोल, कुछ बोल, क्यों नहीं बोल रहा तू, और परमेश्वर चुप रहेगा। That's right. Yes. पर ऐसे कुछ टाइम्स होंगे जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, और प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को इस तरह तैयार करें कि वो जब भी बोले, क्योंकि उसका बोलने का कोई समय नहीं है। हम लोग, मैं जब मसीही बनी, मैं सोचती थी कि मैं जैसी प्रार्थना करना शुरू करूंगी, पहले तो मुझे लगता था कि मैं गॉड की एडवाइजर हूँ, तो मेरी जब प्रार्थना होती थी मैं प्रभु को बताती थी कि ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। और फिर जैसे जैसे समय गुजरा, मुझे रियलाइज हुआ कि ओ, मैं ड्राइवर नहीं हूँ इस गाड़ी की, इस गाड़ी का चलाने वाला यीशु मसीह है, कि मैंने उसको ऑलरेडी थाम दिया था। वो आई ऑलरेडी गिवन हिम दैट। आई टोल्ड हिम, गॉड, आई एक्सेप्टेड यू एज द लॉर्ड ऑफ माय लाइफ। व्हेन आई मेड हिम द लॉर्ड ऑफ माय लाइफ, आई वाज नॉट इन चार्ज ऑफ माय लाइफ। बहुत टाइम लगा ये समझने में और ये सीखने में, और अभी भी सीख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आई एम नो अथॉरिटी। मैं कोई दावा नहीं कर सकती कि जो भी मैं सुनती हूँ और जो भी हुआ है वो मेरे साथ ही हुआ है, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पात्र हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को बोलूँ कि एक निबंध लिखो अपनी मम्मी की कमियों पे, तो वो बोलेंगे कितने शब्दों में, और मैं अगर बोलूँगी 500 शब्दों में, तो रिया बोलेगी मामा 1500 कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। मैं सुपर स्पिरिचुअल नहीं हूँ। मुझ में बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं जो बोलना चाहिए वो बोलती हूँ, और जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलती हूँ। एंड दिस इज नॉट फॉल्स ह्यूमिलिटी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं जैसी हूँ मेरी कमजोरियों के बावजूद। और अगर आप प्रतीक से पूछेंगे कि भाभी की कमियों पे आप निबंध लिखें, तो प्रतीक तो आपको बोलेंगे कि बाइबल से बड़ी किताब मैं लिख सकता हूँ, आई श्योर। क्योंकि मुझ में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं और कमजोरियाँ हैं। पर अगर प्रभु मुझ जैसे इंसान से बात कर सकता है, तो he can talk to anyone. Right. That's right. उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितनी अच्छी, आपकी क्या क्या काबिलियत है। प्रभु को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ देने वाला प्रभु ही तो है। आपकी एजुकेशन, आपकी काबिलियत, वो सब कुछ कहाँ से आती है? कौन देता है आपको? प्रभु। Yes. तो जैसे जैसे आप जो उसको वचन कहता है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और अगर आप विश्वास योग्य नहीं रहे तो जो थोड़ा आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। Right. बिब्लिकल? Right. So you need to remember all these things, क्योंकि मैं अभी नींद खींच रही हूँ कि प्रभु जब आपसे ये चीजें आप शेयर करा रहा है, आपको बता रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप इसे प्रैक्टिस में लाएं। क्योंकि जो आपके पास थोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आपसे ले लिया जाए। प्रभु का हृदय ये है कि वो आपसे बहुत ज्यादा खुल के बातचीत करे। सो प्रभु कैसे हमसे बात करता है? जैसे कि याशिका ने बोला, कभी कभी दिमाग में एक ख्याल आता है, जैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि दिस इज द पर्सन आई विल बी स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद। कभी कभी आपकी किसी भी चीज के लिए प्रभु आपके दिमाग में ख्याल डाल सकता है। जब आपके दिमाग में ख्याल आता है, आपको पास्टर साहब ने शुरू से सिखाया है, हमेशा वचन से टैली कीजिए, क्या ये वचन के अनुसार है। अब जैसे अगर प्रभु ने मुझे बोला कि
ये इंसान है जिसके साथ तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है, ये तो वचन में मैं ढूंढ ही नहीं सकती, That's right. right? So you have to build your relation with him unless he is as kind to you as he was to me. वो आपसे जब तभी बोल पाएगा कुछ एक यूनिक चीजें जो वचन में सब कुछ समाई नहीं है, तो आपको अपना रिश्ता गहरा करना पड़ेगा। कैसे गहरा करेंगे ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, पर मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किस तरह से बातचीत की है। सबसे पहले जैसे हमने बोला that God speaks through a thought. परमेश्वर अपने वचन से, सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है अपने वचन से। आप कुछ पढ़ रहे होगे और अचानक से एक चीज हाईलाइट हो जाएगी आपके सामने, That's right. और आपको पता चलेगा कि ओ जिस चीज के लिए मैं दुआ कर रही थी या मैं सोच रही थी जिसके बारे में, यही है जो प्रभु चाहता है, राइट? ये आप सबका एक्सपीरियंस हुआ होगा। बिल्कुल। बहुत साल पहले मैं माउंट कार्मल में जॉब करने जा रही थी, करना चाहती थी। मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम था जब मुझे दिल्ली में रहना था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं उनके पास चली आऊँ, और अगर मैं वहाँ चली जाती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं क्रिश्चियन बनूँ। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनको लगा ये लड़की तो बिल्कुल बदल गई, और ये जो चीज़ें बोलती हैं ये शब्द इसके नहीं है, कि कोई इसे सिखा रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करते थे, बट आप मेरे पेरेंट्स, अब क्योंकि मैं एक मॉम हूँ, और अगर मैं सोचूंगी रिया अगर एक दिन अचानक से मुझे आके प्रवचन देना शुरू कर जाए, मैं उसे चाटे मारूंगी और बोलूंगी चुप, जस्ट कम बैक, यू नो, मैं तुम्हें पैसे खर्च करके दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा था, यू नो, ये क्रिश्चियनिटी वगैरह ये सब क्या है। सो आई नीडेड अ जॉब टू स्टे इन दिल्ली, और पास्टर सैन ने मुझे बोला कि माउंट कार्मल में जाके अप्लाई करो, और ये मेरा बिल्कुल भी सपना नहीं था टीचर बनने का। मेरा बिल्कुल मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि दिल में कहीं एक जगह पे एक कोने में कुछ यू नो तमन्नाएं होती हैं। कोई फिल्म स्टार बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, और प्रभु ने पास्टर सैन के द्वारा मुझे बोला कि तुम जाके माउंट कार्मल में ट्राई करो, तो मैं गई। अब रिमेंबर, आई डोंट वांट दिस जॉब, आई एम गोइंग एज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। और मैं वहाँ बैठी थी, मैं 21 साल की थी, मैं बैठी थी वहाँ कुर्सी पे, सोच रही थी कि मैं, ये मुझसे सवाल करेगी कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है। अपने घर में मैं सबसे छोटी थी, तो मैं हमेशा सीखने वालों में थी, सिखाने वालों की तो मेरी नौबत ही होती, मतलब मेरा, आई वॉज नॉट एट दैट लेवल व्हेन आई कुड टीच, आई वॉज द यंगेस्ट। सो आई वॉज लाइक अब मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बातचीत करूँगी, और मैं वहाँ बैठ के प्रार्थना कर रही थी, बातचीत कर रही थी प्रभु से कि मैं क्या करूँ। और जब मैं, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, और मैं हमेशा कोशिश कर रही थी पैसे बचाने की, तो मैंने रास्ते में थोड़ा चना और मूंगफली खरीदा एक पैकेज में, और मैंने चना और मूंगफली खा के मुंह पहुँच के लिपस्टिक लगा के मैं बैठी हुई थी वहाँ की, जब मुझे वो बुलाएंगे तब मैं जाऊँगी। और वो पैकेज, क्योंकि मैं स्कूल के अंदर जाती थी, कहीं फेंक नहीं पाती, तो वो पैकेज मेरे पास था, और मैंने वो पैकेज देखा, और वो पैकेज एक बाइबल का पन्ना था, बाइबल के पन्ने का एक पैकेज था, और उस पे लिखा था यूब 12:11-12, मैं पढ़ के बताती हूँ। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना चाहिए। सो आई वाज प्रेइंग, मैं दुआ कर रही थी, प्रभु अगर ये मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, और प्रभु ने मुझे बोला कि चिंता मत करना। अब ये सोचिए, उस वक्त आई वाज, एक तो मैं प्रभु में नहीं थी, प्रभु कितना मुझे प्यार करता था कि जब मैंने वो मूंगफली का पैकेट खरीदा था, तब मुझे नहीं पता था कि ये शायद यू नो आई विल नीड दिस वर्स। तो प्रभु ने पहले से इंतजाम किया कि किसी ने अपने एक तो बाइबल फाड़ी या कबाड़ी वाले को दी, किसी ने उस पन्ने का एक पैकेट बनाया, उस पैकेट को उस मूंगफली वाले ने जिससे मैं खरीदने वाली थी
इत्तेफाक के, बिकॉज आई डिडंट गो दैट साइड, उस तरफ मेरा वास्ता नहीं पड़ता था, तो पहली बार मैं उस मूंगफली वाले से मूंगफली ले रही थी। तो उस पैकेट को प्रभु ने कितने टाइम पहले से मेरे लिए बनवा के रखा, ताकि जब मैं पूछ रही होंगी कि प्रभु मैं क्या बोलूं, तो वर्स मेरे सामने रहे। Isn't he a sweet God? Oh, yes. Such a loving God. So, like, I mean, he must have set this in motion months before, just so that when I needed him, he would be there for me. Right. Because he wants to speak. Right? Amen. Amen. Okay, so प्रभु हमसे हमारे दिमाग से बातचीत करता है, हमारे ऑब्वियसली वचन से बात करता है, और प्रभु हमसे प्रॉफिट्स के थ्रू बात करता है। तो जब मैं विश्वासी बनी तब हमारे चर्च में पास्टर मॉरिस प्रॉफिट थे, और पास्टर मॉरिस बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, बहुत स्माइल करते थे, और हम सब ऐसे ही बैठे हुए होते थे, या रात कोई मतलब वर्शिप चल रही होती थी और अचानक से होता था और बहुत फिर वो अपनी प्रोफेसी देते थे, और मैं सोचती थी कितना अजीब इंसान है, कौन है और ये कैसा है। और क्योंकि मुझे समझ अंडरस्टैंड कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था क्रिश्चियनिटी में। Right. I was very fond of Pastor Morris, but I didn't know what a prophet was. So just like God, क्योंकि परमेश्वर को मजाक शायद पसंद है, कि परमेश्वर ने सोचा, मुझे लगता था वो कितना अजीब इंसान है, अब मैं तुझे प्रॉफिट बना रहा हूँ, अब लोग तेरे बारे में सोचेंगे ये कितनी अजीब सी है। गॉड हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बट परमेश्वर आपसे प्रॉफिट्स के थ्रू बात करेगा। कैसे बात करेगा? पास्टर मॉरिस बहुत बार आके मेरे ऊपर प्रोफेसीज करते थे, और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे समझ में भी नहीं आती थी। जैसे उन्होंने बोला जो 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 मेरी बाट जोड़ेगा, and I was like, बाट कहाँ से आ गया? क्योंकि सिम्पसन्स आता था टीवी पे, और उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था बार्टोलोम्यू, जिसको वो बार्ट बुलाते थे, और मैं सोचती थी जोड़ेंगे मतलब वो जौहर होगा, बार्ट जौहर, ये बार्ट जौहर कौन है, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। सो इमेजिन प्रभु ने ऐसे निर्बुद्धि इंसान को चुना कि वो अपने रहस्य उसको बताए। हिंदी कमजोर थी उस टाइम में, बहुत ही ज्यादा। पास्टर सैन जानते हैं, मैं मतलब सोचती इंग्लिश में थी, और बहुत मेरी हिंदी तो बहुत ही पुअर है, अब बहुत अच्छी है, आप लोग मानते हैं? थैंक यू सो मच। ओके, सो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मैं 25 साल की थी, और सडनली आई स्टार्टेड लाइक, अचानक से तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टियाँ हो रही थी, और मुझे नहीं पता था कि ये क्या सीन है, क्या हो रहा है। और पास्टर लॉनी और उनकी टीम आए हुए थे इंडिया, और रोज मीटिंग्स हो रही थी, और क्योंकि मेरे हस्बैंड प्रेज एंड वर्शिप लीडर हैं वो, और मेरे हस्बैंड, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं, वो वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। Yes. वो टाइम से मतलब टाइम से 5 मिनट पहले होंगे, लेट यूजुअली नहीं होंगे। बट आई वॉज नॉट वेल, मुझे उल्टियाँ हो रही थी और फीवरिश लग रहा था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और प्रदीप लेट हो रहे थे मीटिंग में आने के लिए, पर वो मुझे उस हाल में छोड़ नहीं पाते, तो वो मेरे साथ थे, और मुझे दिख रहा था कि प्रदीप चाह रहे हैं कि हम फटाफट पास्टर लॉनी आए हैं, मैक्स जल्दी करो, बीवी जल्दी से रेडी हो, चलो। और फिर तब तक हमें लगा क्या पता मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्रदीप एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके आए, और मैंने चेक किया, और मैं प्रेग्नेंट थी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। तो क्योंकि प्रदीप हैं, उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ 3 करते हैं, मैक्स कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है, तो हमने, और ये मतलब उल्टियाँ हो रही हैं, जाके एक और किट लेके आ रहे हैं, फिर मैंने एक और किट ट्राई किया, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, प्रदीप ने कहा बेस्ट ऑफ 3, चलो अभी आप ठीक लग रही हो, चलो चलते हैं। तो हम रेडी हुए और हम मीटिंग में आए, और जब हम मीटिंग में हम, इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग,
पास्टर लॉली लोगों को मतलब पहली मीटिंग इन दैट जब हम घुसे पास्टर लॉली ने कहा व्हाट डिड ही से प्रदीप व्हाट डिड ही से Just because you're pregnant doesn't mean you can't love. Yeah, he said being pregnant is no excuse for being late. So हम अपने दिमाग में सोचते रहे थे किसी को नहीं पता और जब हम जैसे और मैं इतनी एम्बैरेस हुई कि आप सोचिए एक 25 साल की लड़की लेट एक तो घुसी अपने हस्बैंड के साथ और जो बंदा मीटिंग का मेन पर्सन है जो अमेरिका से आया है वो मुझे देखते ही कह रहा है कि मतलब तुम प्रेग्नेंट हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लेट हो सकती हो कभी भी। तो मैं बहुत एम्बैरेस हुई और मैंने प्रदीप की तरफ देखा और प्रदीप ने कहा सुनो ब्रेक में तीसरा टेस्ट ले लेगा। तो फिर मैं बाथरूम गई और मैंने छुप छुप के तीसरा टेस्ट किया और वो भी पॉजिटिव आया और मैंने प्रदीप को जाके बोला सुनो इट्स पॉजिटिव। सो प्रदीप अपने दिमाग में सोचने लगे कि मैं कैसे अपनी फैमिली को समझाऊंगा और क्या बोलूंगा कि पापा एक खुशखबरी है आप दादा बनने वाले हो। प्रदीप ने पूरे डायलॉग्स सोच रखे थे और प्रदीप ने पास्टर सैन को जाके ब्रेक में बोला कि पापा सुनो कुछ बात करनी थी। पापा ने बोला हाँ बेटा देखना प्रेग्नेंट है बता। अपेरेंटली सबको पता है खाली हम ही को नहीं पता कि हम प्रेग्नेंट हैं। परमेश्वर आपसे प्रॉफिट्स के थ्रू बात करेगा। आमीन आमीन। He talked prophetically. Pastor Loni had also said that they knew before they left from the US. हाँ पास्टर लॉनी जब यूएस से फ्लाई करने से पहले उनको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो टैनी जो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी अपेरेंटली जैसे ही वो फ्लाइट से उतरी और पास्टर रानी को मिली उसने कहा I was pregnant। So apparently केवल हम दोनों को नहीं पता था और सबको पता था कि रीना मैजिक इस दुनिया में आने वाली है। So God speaks to you through prophets। अब मेरे दिमाग में कई बार ये सवाल था कि आप साम्स पढ़िए। आप जानते हैं कि दाऊद राजा एक प्रॉफिट था, राइट? और जब दाऊद पाप में पड़ा तो उसके पास कौन आया? नातान नबी, राइट? सो व्हाई डिड ही ऐसा क्यों हुआ कि एक प्रॉफिट को एक प्रॉफिट की जरूरत पड़ी? प्रभु तो दाऊद से बात करता था, वो तो जानता था प्रभु को, राइट? वो तो खुद प्रोफेसीज करता था, उसने परमेश्वर का मंदिर बनाया। पर हर मसीह के देह के हर एक जन को प्रभु चाहता है कि हम इंटरकनेक्टेड रहें। हम में से कोई भी प्रभु नहीं है, हम सब प्रभु, हम सबको एक छोटा छोटा अंश दिखाता है। तो एक प्रॉफिट, बेशक आप प्रॉफिट हो, आप ये मत समझिएगा कि मुझ में प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है तो मुझे सब कुछ आता है। कुछ एक चीजें आपको नहीं पता होंगी और दूसरे प्रॉफिट के थ्रू प्रभु आपकी जिंदगी में बताएगा। अब पास्टर साहब ने हमें हमेशा सिखाया था कि जब आपको प्रोफेसी मिले उसको आप नोट डाउन कीजिए। सो मेरे पास एक पूरी, अब तो मेरे पास 3 नोटबुक्स हैं प्रोफेसीज की। क्या क्या प्रोफेसीज प्रभु ने किस तारीख को किसके थ्रू हमें बताई। जब परमेश्वर आपको एक प्रोफेसी देता है, प्रोफेटिक वर्ड देता है, आप उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि कोई भी 100% एक्यूरेट प्रॉफिट है ये हम क्लेम नहीं कर सकते। देयर आर प्रॉफिट्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स जो गलतियां करते हैं, राइट? पर कभी कभी प्रभु आपको कॉन्फर्मेशन देगा। कभी कभी ऐसा होगा कि प्रभु आपको दुआ में कुछ झलक सी बताएगा और फिर एक प्रॉफिट आके आपको कॉन्फर्मेशन देगा और फिर कुछ टाइम बाद एक कंप्लीटली अनरिलेटेड प्रॉफिट आपको सेम प्रोफेसी देगा। फिर कोई और आके आपको वही चीज, और जब आपकी जिंदगी में सेम प्रोफेसी बार बार हो रही है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। यू कैन, इट्स तजुर्बा बता रही हूँ कि 100% ऑब्स्टिकल्स आएंगे। एक ऑब्स्टिकल, 2 ऑब्स्टिकल नहीं, thousands of obstacles। ऑब्स्टिकल क्या होता है? अड़चने, रोड़े, मतलब प्रभु आपको कोई भी जिम्मेदारी तब तक नहीं सौंपेगा जब तक आप उस वजन को उठाने के लायक ना हो। तो अगर प्रभु ने आपको अनॉइंटिंग
दी है किसी चीज की और आप देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है, अगर प्रभु ने आपको प्रॉमिस कि मैं और मुझे क्यों चुना, पर अगर तेरी बुद्धि में तुझे ये सही लगा तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और जब अड़चने आपके जीवन में आए और जब आपको कठिन समयों से गुजरना पड़े, आप उस प्रोफेटिक वर्ड को एकदम एक तलसी आपको दी तो परमेश्वर जानता था कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या मोड़ आने वाले हैं, आपको नहीं पता था उस वक्त, प्रभु जानता था। और जब प्रभु ने वो वचन आपके लिए रिलीज किया तो उस वचन में बहुत अजीब, कोई बहुत छोटा सा अजीब डिटेल होगा उसमें जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, फिर भी उसको रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सालों बाद, दशक बाद प्रभु आपको उसका मतलब समझाए। तो अब बहुत जरूरी है, कुछ लोग सोचते हैं मुझे याद रहेगी प्रोफेसी, हाँ प्रभु ने आपसे सपनों में बात की, ओके, प्रभु कभी कभी आपसे सपनों में भी बात कर सकता है, मुझसे बड़ा, क्योंकि उस वक्त मैं 26 या 27 साल की थी। खड़ा हुआ है वहां पे, उसने जीन्स पहनी थी, सफेद शर्ट पहनी थी, उसकी एक गोटी थी ऐसे दाढ़ी, और मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा नाउ सुपर अजीब, राइट, क्योंकि हम यीशु मसीह को चोगे में एक्सपेक्ट करते हैं और इतना कूल नहीं एक्सपेक्ट करते, पर मेरे सपने में जीसस बहुत कूल थे। And then I said, come in, and he said, हाँ, I will. अरे वो तब, and I remember Jesus's eyes. कुछ लोग होते हैं जो बहुत खुश रहते हैं, आपने लोगों को देखा है, उनकी आंखों में खट्टा और होता है। एक बुझा हुआ इंसान दूसरों के लिए ज्योति बन सकता है? नो। सो जब आप प्रभु के पास जाएं, आप ये जान लीजिए कि हमारा प्रभु बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा करुणाकारी है, बहुत ज्यादा एबल है, काबिल है, पर सबसे ज्यादा वो आपका दोस्त है, वो आपका पिता है, पर वो आपका है। आप अपने डैड को जाके हर एक छोटी सी छोटी चीज नहीं बताओगे, आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे, यार बताइए बड़ी अजीब सी चीज हुई। आप अपने डैड को हर एक छोटी सी छोटी चीज शेयर कर ही नहीं सकते, अपने दोस्तों के साथ, सबसे करीब दोस्त के साथ आप कर सकते हो। And that is what God was trying to teach me through the dream. Yes. Which I learned after many years. Amen. Okay? So God can speak to you through dreams. Right. Okay? फिर परमेश्वर ने कई बार मुझे सपनों के भी टॉपिक्स, what time can I teach them? Yeah, you continue. 15 minutes? कई बार प्रभु ने टॉपिक्स दिए हैं, प्रेयर के टॉपिक्स, ड्रीम्स के थ्रू। सो प्रभु अगर आपसे बात कर रहा है आपके सपनों के द्वारा, मुझे नहीं पता प्रभु ने आपको क्या दिखाया, पर कभी कभी प्रभु जब आपको सपना दिखाता है, वो जरूरी नहीं है कि जैसा सपना में हो वैसा ही मतलब हो। जैसे प्रभु ने जोसेफ उस राजा को दिखाया कि याद है 7 मोटी गायें, 7 पतली गायें, राइट? अब उसका मतलब कुछ और था। दानिएल ये जब राजा ने देखा एक सपना, जैसा मूर्ति थी वो मूर्ति के बारे में था ही नहीं, सपना किसी और चीज के बारे में था। तो प्रभु जब आपसे सपने के बारे में सपने के थ्रू बात करता है, अच्छी आइडिया है कि आप उन सपनों को नोट डाउन कर लें, क्योंकि हर चीज में प्रभु का हृदय ये है कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे, और जितना आप समय उसके साथ गुजारेंगे उतना वो आपको वो चीज रिवील करेगा। और कई बार प्रभु जब एक चीज दिखाता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं अनियन हैज मेनी लेयर्स, एक प्याज में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो जैसे जैसे आप उस चीज को खोलते रहोगे उसके नए नए मीनिंग्स निकलते रहेंगे। Yes. तो जब प्रभु आपको एक सपना दिखाए और आपको लगता है कि ये प्रभु की ओर से है, उसके साथ बैठो, सबसे पहले उस सपने को नोट डाउन कर लो,
क्योंकि आपको डिटेल्स बाद में याद नहीं रहेंगे। उस सपने को नोट डाउन करो, उसमें क्या कलर्स हैं, उसमें क्या क्या हुआ, क्या चीज़ अजीब लगी, आपको कैसी फीलिंग हुई उस सपने में, वो सब नोट डाउन करो, क्योंकि प्रभु उसको उसका खुलासा करेगा अगर आप वफादार रहे। यस राइट, क्योंकि जो थोड़े में वफादार रहेगा उसको और दिया जाएगा। आप लोगों को ये बोरिंग तो नहीं लग रहा? ना ना नो नो I'm वेरी sorry. मीनिंगफुल। बहुत ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है और बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। आमीन। यस यस। Okay, then God आपके साथ कई बार through repeated patterns बात कर सकता है। Repeated patterns मतलब आपको पता है एक चीज आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बार बार या तो आ रही है या हो रही है, और इन सब के लिए आपको स्पिरिचुअली डिसर्न करना पड़ेगा कि प्रभु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कुछ एक साल पहले हम 2-3 सालों से हम 3-4 सालों से हम भीमताल आ रहे थे, और हम भीमताल अब कुछ एक रीसेंट बात है ये, हम भीमताल गए और मैं जब भी भीमताल जाती हूँ, आमतौर में बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, वो अपनी सास और ससुर की सेवा में लग जाती हैं, और मैं वहाँ जाती हूँ और मैं आज़ाद पंछी बन जाती हूँ। मैं सुबह से उठती हूँ और मैं पहाड़ों पे चली जाती हूँ और मैं यहाँ वहाँ पूरे को एक्सप्लोर कर लेती हूँ, कहाँ नदी है, कहाँ लोग हैं, कौन कहाँ रहता है, कैसी चीज़ कहाँ मिलती है, ये सब मैं एक्सप्लोर करने निकलती हूँ। तो जब मैं भीमताल में मैं पहाड़ों पे चढ़ रही थी, अचानक से मैंने एक बहुत खूबसूरत तितली देखी। मैंने कहा वाओ सो प्रिटी, मैंने एक फोटो खींची। फिर मैं थोड़ा और आगे गई और मैंने एक और तितली देखी। मैंने कहा तितलियों का सीजन है, सही। अब हम सालों से जा रहे थे भीमताल, और मैं हमेशा जब भी जाती हूँ भीमताल तो मैं अपना रिसर्च करके कि सुनो यहाँ पे ये हम देख लेते हैं। और जब मैं जाती हूँ, अब गॉड हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतीक जो दिन है और मैं जो रात हूँ को इकट्ठा किया। तो प्रतीक का दिनचर्या और मेरा दिनचर्या, प्रतीक का स्वभाव और मेरा स्वभाव 180 डिग्रीज ऑपोजिट है, बिल्कुल ही ऑपोजिट। हमें एक कॉमन चीज है कि हम दोनों प्रभु को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, जो प्रभु की देन है। पर हाँ, तो जब भी हम जाते हैं मैं प्रतीक को बोलती हूँ so let's go here, let's go there, प्रतीक से जाएंगे और सारी चीजें सुबह खुलती हैं और सुबह मेरा कलाकार पति सोते हैं। तो हम कभी भी कहीं नहीं जा पाते थे, तो मैं सोचती थी चलो छोड़ो मैं खुद ही जाऊंगी। अब इस बार जब हम गए तो प्रतीक ने स्पेशली डैड कुछ, इनफैक्ट पापा कुछ प्रतीक को दिखाना चाह रहे थे या कुछ बातचीत करना चाह रहे थे, और प्रतीक ने बोला पापा मैं मेघना को थोड़ा ऐसे एक बार थोड़ा यहाँ भीमताल दिखाऊं। तो हमने सब कुछ आइटिनरी चेक की कि क्या क्या हम यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे एक मठपाल्स म्यूजियम है ऑफ आर्ट, यहाँ पे कुछ है, और सबका टाइमिंग खत्म हो चुका था। एक बटरफ्लाई म्यूजियम खुला था, तो प्रतीक और मैं बटरफ्लाई म्यूजियम गए और वहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और वापस आए। बटरफ्लाई, रिमेंबर बटरफ्लाई, देयर इज अ मोटिव रनिंग थ्रू दिस। सो ये अजीब, मतलब इतनी बार हम भीमताल गए, कभी हम नहीं गए, और फिर अचानक से हम जा भी पाए तो बटरफ्लाई म्यूजियम। जब मैंने तितलियां देखी, मैं घर आई और हमारे घर में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, और मैं जब अपनी बैल्कनी में बाहर जाऊं तो तितली, मैं यहाँ जाऊं तितली। सो अब तक क्योंकि मैं थोड़ी मंदबुद्धि हूँ, मुझे लगने लगा कि कुछ परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो मुझे नहीं पता। नाउ अंडरस्टैंड कि प्रभु कभी कभी, आप लोगों ने एक्शन मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स देखी हैं या बुक्स पढ़ी हैं, मिस्ट्री नॉवेल्स, बहुत ज्यादा, राइट? सो क्या होता है, हमको एक कोई छोटा सा क्लू कहीं मिलता है और फिर कुछ और होता है, फिर वो डिटेक्टिव जाता है, फिर एक और कोई क्लू मिलता है, फिर आगे जाते हैं, फिर एक और कहीं क्लू मिलता है,
फिर हमें पता चलता है कि ओह इस लड़की की उस आदमी से दुश्मनी थी, फिर आगे जाके पता चलता है वो इसलिए उसने मर्डर किया। होता है पिक्चरों में। अब जितना हमको मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, मिस्ट्री मूवीज देखना पसंद है, और इन सब चीज़ों, इन सब इमेजिनेशंस का देने वाला कौन है? कौन है? परमेश्वर। सो परमेश्वर चाहता है कि जब हम अपनी जिंदगी में चलें, बहुत सारी चीजें वो इट्स लाइक अ मिस्ट्री, इट्स लाइक एन एडवेंचर वॉक। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, एंड देन अचानक से अगर आप ध्यान दे रहे हो इट विल मेक सेंस, और आपको पता चलेगा परमेश्वर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। आमीन। सो मैं घर आई और हमने मेरे गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाइज देखी, और मेरे पेरेंट्स की बहुत इच्छा थी कि वो अपने चारों ग्रैंड चिल्ड्रन को एक क्रूज पे लेके जाएं। तो हम एक क्रूज, तो प्रतीक ने बोला कि सो पापा मम्मी अकेले नहीं हैंडल कर पाएंगे 4 बच्चों को, आप भी जाओ। तो लास्ट मिनट पे मैं, और जब हम शिप में थे एकदम समुद्र के बीच, मैं अपने मॉम एंड डैड के कैबिन में गई, रिया नानी के साथ रह रही थी, और मैं बैल्कनी में खड़ी हुई और समुद्र के बीच एक सफेद तितली आई, उड़ती हुई और गई। यू रिमेम्बर? और मैंने कहा कि आई जस्ट सॉ अ बटरफ्लाई इन द मिडल ऑफ द ओशन। सो नाउ वो अजीब चीज है कि एकदम एक समुद्र के बीच में एक तितली क्या कर रही है। और फिर मैंने दूसरों से पूछा, पापा आपने देखा तितली? पापा ने कहा हाँ बेटा हमने देखी। मैंने रिया से पूछा, रिया आपने देखी? रिया ने कहा होगी। सो आई वाज लाइक तितली, ओके। एंड ऑल दिस व्हाइल आई एम प्रेइंग कि ये परमेश्वर, ये तितलियों का क्या सीन है? क्या तू मुझे तितली बनाना चाहता है? क्या कहानी क्या है? खूबसूरत है पर ये टू मच हो रहा है, बता भी रही। और मैं आप लोग हंसेंगे, मैं अपने आप को एकदम बेयर कर रही हूँ। तो मैं जब हम क्रूज पे थे, मैं सुबह सुबह उठ के बैल्कनी में वहाँ डेक होता था और समुद्र, और मैं प्रार्थना कर रही हूँ और मैं कहती थी प्रभु कितना मजा होगा अगर तू समुद्र पे चलता हुआ मेरे पास आए या मुझे बोले कि मैक्स और मैं कूदती भी आऊंगी। सो ऑल दीज अजीब थिंग्स आर हैपनिंग। फिर हम वापस जब आ रहे थे, हम सिंगापुर के एयरपोर्ट पे थे केवल 2 घंटे के लिए। सिंगापुर के एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीजें हैं करने की, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। और बच्चों को यहाँ वहाँ दिखा दिया, और फिर एक बटरफ्लाई पार्क था वहाँ पे, और मैंने पापा को बोला कि आप देखो ये है कहाँ जाए? अरे बटरफ्लाई पार्क चलते हैं, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। हम बटरफ्लाई पार्क गए, तितलियां भरी हुई, ओके। फिर मैं दिल्ली आई और फिर हम चर्च आए, और उस दिन पार्किंग एकदम उस कोने में हुई, और अर्जुन भाई और याशिका आए हमारी हेल्प करने के लिए सामान लाने में। और आपको याद है अर्जुन भाई, तितली नीचे गिरी हुई थी, मरी हुई तितली, और आपने उठा के मुझे दिखाया। एंड आई वाज लाइक गॉड, कहानी क्या है? तितलियों का सिलसिला। हाँ ये क्या है बताओ। सो फिर वो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने बताया कि टाइम आ रहा है कि अब तक तुम एक कैटरपिलर थी, मैंने तुमको अंदर बंद रखा है, पर अब तुम मेटम ऑफिस के थ्रू जाओगी और तुम मतलब यू बिकम अ बटरफ्लाई। सो एंड देन ही प्रिपेयर्ड मी कि अभी तुम कैटरपिलर स्टेज में हो, तो ध्यान दो। और कुछ एक चीजें परमेश्वर ने खास मेरे जीवन के लिए मुझे समझाई, बट रिपीटेड पैटर्न्स एंड अनयूजुअल हैपनिंग, कि समुद्र के बीच में एक तितली हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही इज द गॉड ऑफ द यूनिवर्स। वो कुछ भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए, राइट। वो सूरज रोक सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मूसा जब जा रहा था उसने क्या देखा? एक बर्निंग बुश, पर वो बुश जला नहीं। तो आपके जीवन में जब आप चल रहे हैं, यहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, हो सकता है प्रभु आपसे बात करना चाह रहा हो। अपनी आंखें, अपने कान खुले रखिए, क्योंकि अगर मैं केवल
पहाड़ क्लाइंब कर रही होती और मैं ध्यान नहीं देती उस तितली पे, तो मैं वो पैटर्न फॉलो नहीं कर पाती। राइट, क्योंकि प्रभु ने ये मिस्ट्री यहाँ से शुरू की और ये 4-5 महीनों की बातें हैं, ये चलता रहा लगातार, बार बार बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई। क्योंकि मैंने ध्यान दिया तो मैं ये बात समझ पाई, मैं कैच कर पाई, नहीं तो मैं मिस कर गई। राइट, तो प्रभु चाहता है कि आप जब हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हमसे तब बात करेगा जब हम बहुत ज्यादा पाक और पवित्र और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, और प्रभु कभी भी कहीं भी आपसे बात कर सकता है। That's right. क्योंकि वो आपकी जिंदगी का प्रभु है। Yes. Hallelujah. 5:30 बज रहे हैं, ये टीचिंग थोड़ी लंबी है, I'm sorry, क्योंकि मेघना सेन की जिंदगी काफी लंबी है और उससे भी ज्यादा परमेश्वर का काम उसके जीवन में और भी ज्यादा अद्भुत और ब्यूटीफुल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि मेरा हार्ट, ये टीचिंग मैं कंटिन्यू करूंगी शायद कभी बाद में। That's right. आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि ये मेरा हार्ट ये नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं कितनी महान हूँ और प्रभु कैसे मुझसे बात करता है। मैं बहुत साधारण, बहुत नॉर्मल, दिन भर काम करने वाली, यहाँ वहाँ भागने वाली गर्ल हूँ, पर प्रभु ने अपनी बुद्धि में मुझे समझा कि ओके, दिस गर्ल आई विल स्पीक टू हर, आई विल टीच हर, एंड ही डिडंट जस्ट टीच मी फॉर माय सेक, ही टॉट मी सो ही कैन टीच यू। Right. सो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें, बहुत तरीकों से प्रभु बात करता है और कैसे उसने मेरे जीवन में बात की। आप सब बहुत ज्यादा प्रेशियस चुनिंदा लोग हैं, आप में से एक एक को प्रभु ने तराश के यहाँ खींच के लेके आया है। Right. Yes. और आप सबके लिए प्रभु के पास एक योजना है, एक प्लान है। हो सकता है उसने आप पे जाहिर किया हो सकता है आप पे जाहिर ना किया हो। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर प्रभु के पास मेरे लिए प्लान है तो हम पुलपिट पे खड़े होके या प्रार्थना करके या लोगों को, करोड़ों लोगों को बचाएंगे। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने फेमस हो, लोग आपको कितना जाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बहुत मामूली इंसान को हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री हो एक अच्छी मॉम बनने की, और हो सकता है जिस बच्चे को आप बड़ा कर रहे हैं वो प्रभु के लिए आगे जाके बहुत सारा काम करें। Amen. प्रभु चाहता है आप जहां भी रहें आप ज्योति बन के रहें, उसका स्वभाव आपसे झलके। जब आप एनवी इज अ फन गॉड, सो क्रिश्चियंस प्लीज स्माइल, ओके, बी हैप्पी, बिकॉज आपका परमेश्वर आपको प्यार करता है और वो आपसे बातचीत करना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस टीचिंग में बेहद सच्चाई थी और सबसे बड़ी बात, मैं दुआ कर रहा था इस चीज के लिए क्योंकि एक हलवाई का खाना खाते खाते कभी कभी थक जाते हैं। अगर आपको रोज चाउमीन मिलता रहे तो प्रतीक ने बीच में आके टीचिंग करी और मुझे नहीं पता, मैंने किसी से पूछा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली। और एक चीज भेद की आपको बात बताऊं, मैं अब तक उस टीचिंग को बार बार सुनता हूं। मेरे पास वो नोट्स की पिक्चर है जो मैं देखता रहता हूँ और अपने आप को बताता रहता हूँ। तो आप याद रखना कि कोई भी खादिम इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर से ऊपर चला जाए, और कोई भी खादिम कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ सीख गया। और मैंने अपने को अच्छे से तभी सिखा पाया जब मैंने अपने छोटों से भी सीखा। आज की टीचिंग देखना, इट वाज अनबिलीवेबल। और देखिए जो प्रोफेटिक, अब सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता दूं कि मेघना ने मुझे बताया कि मैं टीचिंग नहीं करना चाहती थी। आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, व्हिच आई नो। इवन प्रतीक ने भी मुझे कह दिया था, पापा अभी मेघना को आप मत फोर्स करना, वो आ तो रही है। याद है प्रतीक, मैंने कहा था यार मुझे कुछ पता नहीं, ऐसा लगता है मेघना को टीच करना चाहिए।
तो वो मुझे लगता नहीं था, वो गॉड वाज टेलिंग मी, बट लेकिन मैं चुप हो गया ये सोच के कि शायद अभी टाइम नहीं, फिर मैं चुप ही हो गया। लेकिन गॉड ने मुझे इनकरेज कैसे किया कि मेघना ने आगे होके मुझे परसों कहा कि पापा मुझे ना गॉड ने बड़े मिरेकुलसली रात को मैं सो नहीं सकी, शायद रात को अर्ली मॉर्निंग या सो नहीं सकी, और मुझे परमेश्वर ने ये चीज बताई। तो सी हाउ गॉड वर्क्स। कोई चीज आप करना नहीं चाह रहे, जैसे जोना नीनवे नहीं जाना चाहता, तरशीश को भागा, लेकिन परमेश्वर उसे नीनवे अपने तरीके से ले आया। आप वो तरीका मत परमेश्वर को मजबूर करना। तो बेसिकली फिर मैंने ये सोचा और मैंने टिकट ले लिया, अब मैं इतना गली में टीच करूंगी, क्योंकि मैं नहीं आना चाहता। पिछले संडे भी मैं नहीं आया था, इस संडे भी मैं गोद मारना चाहता था, ये सोच के कि अब मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा मेघना टीच कर रही है, सब हो गया, मैं टिकट कैंसिल कराने का भी टाइम नहीं दिया इसने मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ ही घंटे लगे थे गाड़ी पकड़ने में। तो बट I am thanking God Almighty। यहाँ खड़ा होके कोई शख्स नाटक कर सकता है, मैं झूठ बोल सकता है, बोलना भी नहीं चाहिए। मैं इतना ब्लेस्ड हुआ हूँ कि दिस टीचिंग रियली इनकरेज्ड मी ऑल्सो। 38 इयर्स हो गए मुझे प्रचार करते हुए, सिखाते हुए। आप लोगों को डेफिनेटली आपको तो चेंज मिला एक अच्छी टीचिंग के साथ, तो लाओ, बट मुझे माफी मांगनी पड़ेगी प्रभु, मैं खामोखा ये सोच रहा था कि टिकट कैंसिल कराऊं। ओ प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसके बाद देखिए मैंने मेघना को पता नहीं क्या सोच के कह दिया, मेघना ये टीचिंग जो तुम करने जा रही हो, देखिए मैंने आपको बताया था कि हाउ टू रिसीव आंसर्स ऑफ अवर प्रेयर। मुझे अच्छी तरह यूट्यूब इस बात की गवाह है। मेघना ने उस चीज को बहुत आसान बना के और बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी शुड गो टू गॉड। यस। सौरभ बड़ी मुश्किल से ये करके कि आज मैं फाइट करके आऊंगा, क्योंकि मेघना आ रही थी टीच करने के लिए, तो वो बेचारा यूं कर रहा है बार बार, मैंने कहा क्या हो रहा है, खुदा कराया। तो उसने कहा पास्टर साहब जाने का दिल नहीं कर रहा, जाना हम जरूरी है, नौकरी का सवाल है। लेकिन पूछता हूँ, फिर मेघना भाभी कुछ ऐसा पॉइंट पेश करती कि मैं सोचता हूँ कि चलो ये भी सुन नहीं जाऊं, तो मैंने उसको अभी कहा कि तू ट्रेन पकड़ेगा, तो ये लाइव है टीचिंग, तो उसे सुनता हुआ जाना, वो सुन रहा होगा भी। तो बेसिकली मैंने मेघना से ये कहा था, मेघना आई डो नॉट नो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि टीचिंग तुम इस संडे खत्म नहीं कर पाओगी, तो तुम अगले संडे भी आना। तो I request you to come, because ये इतनी इम्पोर्टेंट नीड है हर विश्वासी की जानना। क्योंकि देखिए मैंने आज एक चीज सीखी जो मैंने पहले नहीं सीखी 38 इयर्स में, कि परमेश्वर इस तरह के हिंट्स देता है, वो है मेरे साथ। आज मैंने सीख लिया इस बात, बीइंग ए पास्टर मैं बता रहा हूं, और ये रिले हो रहा है, पता नहीं कौन कौन देखेगा। आज 38 इयर्स की सेवा करने के बाद मैं ये कन्फेशन कर रहा हूँ, और बहुत ऑनेस्टली कर रहा हूँ, जो कि पास्टर्स के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, मुझे नहीं होती बिल्कुल भी। मैं तो सिमरन जैसी लड़के से भी सीखता हूँ, जैसी मतलब खराब नहीं, बट लाइक वो बिगिनर है, और मैंने उसे सब कुछ सिखाया, लेकिन कभी उसने एक बार एक ऐसी चीज शेयर करी कि मैंने सीखी। तो आज मैंने ये चीज सीखी, क्योंकि मेरे जीवन में अभी ये हो रहा है, सिग्नल मिल रहा है, लेकिन आज मुझे ये पता चल गया कि इट कुड टेक मोर टाइम टू फुलफिल। आप समझ रहे हैं, आपको क्या पता परमेश्वर क्या सिग्नल्स दे रहा है, तो उसे हल्के में मत ले लीजिएगा मेहरबानी। yes. और रहा सवाल सपना, तो ये मैं इन लोगों को कभी कभी मैं तंग आके, क्योंकि मैं बीबीए में था, हर तीसरा आदमी आके मुझे सपना बता देता था, और फिर कहता था पास्टर सेन, क्योंकि मुझे सपने का अर्थ बताने का गिफ्ट दिया है परमेश्वर। एक व्यक्ति ने एक सपना देखा कि उसी के घर में हम मीटिंग करते थे मोती बाग में, क्या कहते हैं,
मिस्टर पॉल नाम था, हमारे कोऑर्डिनेटर के होने वाले ससुर थे वो। तो वो कहने लगे वो यार भी बोले मैं क्या यार, पंजाबी थे ठेठ, और उनकी वाइफ तो ऐसी पंजाबी बोलती थी जो पाकिस्तान में शायद बोली जाती, हमें समझ में भी नहीं आती थी। अब ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहते हैं, वो कहने लगे हमारी सारी मीटिंग्स, टीचिंग्स, हर पवित्र काम उस मोती बाग के उस घर में होता था। और वहां उन्होंने मुझे कहा मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा अंकल आप बहुत ज्यादा परेशान मुझे लग रहे हो 2-1 दिन से। तो उन्होंने मुझे फिर अपने ड्यूटी पे बुला के कहा यार मैंने ये देखा है बहुत बड़ा अजगर जो है वो आया, और यार मेरे पंखे की ये जगह दिख रहा है, कैप ऊपर सबसे एक कैप दिख रहा है आपको पंखे पे, उसमें थोड़े सा वो नीचे था, उसमें जगह थी, उसमें जाके घुस के और अपना फन लगा के ऊपर बैठ गया। अब वो थे पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड के, पेंटिकोस्टल एक जो क्या कहते हैं एक डिनोमिनेशन है, और मैं भी उसी से ही आया था। अब वे मिनिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जो हमें जैसे जीसस क्राइस्ट इज नॉट गॉड, सबसे ज्यादा डेंजरस टीचिंग तो ये थी। तो मैं भी डर गया सुन के। मैंने कहा यार अंकल ओहो आपको तो परमेश्वर ने बता दिया कि सब कुछ आपके घर के अंदर शैतानी हो रहा है। उन्होंने कहा यार तू दुआ करी ते मैंने दसी बिकॉज तेरे पास ये गुण है। मैंने कहा हाँ है तो सही अंकल, मैं दुआ करूंगा। तो मैं जब दूसरे दिन मॉर्निंग में ब्रश कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने बताया सांप, आप ध्यान रखिएगा, सांप इज नॉट ऑलवेज डेविल, डेविल इज डेविल। उसने सांप को चुना क्योंकि वो चालाक था, राइट। और आज हमारे देश के लोगों ने सांप को चुना एज ए भगवान, वो फर्क बात है। बट आपको ध्यान हो तो सांप ने डस लिया था इस्राएलियों को, तब परमेश्वर ने क्या कहा था? मूसा से क्या कहा था कि क्या कर, एक सांप लटका दे। तो बेसिकली परमेश्वर ने मुझे अंडरस्टैंडिंग दी कि इसको बता कि जो आपने सपना देखा है वो शैतान ने आपको डराने की कोशिश करी है ताकि आप इस चीज को आप रोक दें। अदरवाइज सांप हमेशा शैतान को ही नहीं दर्शाता। आप समझ रहे हैं? right. इस तरह की अंडरस्टैंडिंग अगर, और दूसरी चीज जैसे मेघना ने आज बताया कि अगर आपको फिर भी कोई पिक्यूलियर सपना देख लें तो आप किसी प्रॉफिट के साथ शेयर कर सकते हैं। क्या पता परमेश्वर उसके द्वारा आपको मीनिंग बताए। जैसे कि मैं, हमारे इस चर्च के बहुत से लोग में से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं इसीलिए लवन्या से बोल रहा था कि लवन्या ने एक बड़ा पिक्यूलियर सपना देखा और मैंने उसका मीनिंग बता दिया, क्योंकि मुझे जब सपना आप बताओगे कई बार मुझे इमीडिएट मीनिंग मिल जाता है। मैंने उसे बताया हमारे जो प्रॉफिट है या प्रॉफिटेस है उनको आपको पता है बाइबल में क्या बोला जाता है? दूसरा शब्द दर्शी, सीयर। तो समटाइम्स दे सी थिंग्स। तो सिमरन हमारे बीच में एक ऐसी लड़की है जो बहुत उससे परमेश्वर के सपनों के द्वारा बात करता है, लेकिन वो पजल हो जाती है तो मुझे बता दी और मैं उसे कहता हूँ ओके लेट मी प्रे, आई विल नॉट यूज माय विजडम, सो आई विल आस्क गॉड। तो बेसिकली आज उसने 4 पॉइंट्स मेरे हिसाब से जो मैंने अभी बिना लिखे याद कर लिए बताए हैं तरीके, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। तो ये रिकॉर्डिंग आज ही व्हाट्सएप पे आ जाएगी। मैं चाहूंगा पूरे हफ्ते आप इसे बार बार सुनेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे आप। ये इंसानी फितरत होता है। मेरे को नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए क्योंकि मैंने सालों ये काम किया है कि बार बार एक लाइन सुनता था हिंदी में ट्रांसलेट करता था, एक लाइन सुनता था हिंदी में ट्रांसलेट करता था। और आज मेघना की हिंदी भी इसलिए इतनी अच्छी हुई है कि आज मैक्सिमम मेरे नोट्स जो आपके पास मैं जो टीच करता हूँ वो मेघना ने ही ट्रांसलेट किए और उसमें उसको हिंदी सीखनी पड़ी है तो इससे उसकी हिंदी इंप्रूव हुई। अदरवाइज वाकई वो जो अभी बता रही थी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था उन सारी चीजों का। मैं मॉरिस साहब को मैं समझाता था कि आप जब डील करें तो ध्यान रखना मेरी बहू है और अभी नई है। उसने कहा हाँ यार अंग्रेज है। मैंने कहा अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज बोलते हैं ब्रिटिशर्स को। एक तो हम हर गोरे चमड़ी वाले को अंग्रेज बता देते हैं। ध्यान रखिएगा अमेरिकन है,
स्वीडिश है, और अंग्रेज जो वर्ड बोला जाता है वो ब्रिटिशर को बोला जाता है, दे आर अंग्रेज, इंग्लिश, राइट। तो मैंने कहा वो अंग्रेज नहीं है, उसका जो हर एक की हॉबी होती है, जैसे मेरी टेबल टेनिस थी और फुटबॉल था और हॉकी, 3 मेरे गेम्स बहुत फेवरेट थे जिसमें मैं बहुत आगे था। तो मैंने कहा ऐसे उसकी हॉबी इंग्लिश की रही है एंड शी इज एक्सीलेंट, और मैंने कहा मैं प्रोनाउंसिएशन उससे सीखता हूँ, आपको बता दूं और मैं बताता रहता हूँ आपको, राइट। मैं अपने बच्चों से, अब मैंने प्रतीक को मैंने सिखाया, माँ बाप की मेंटेलिटी ये होती है कि बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, और प्रतीक ने जब इंग्लिश ऑनर्स कर ली तो ये मतलब नहीं था कि प्रतीक ने मुझे कह रहा था पापा ऐसे ये चीज नहीं होती ऐसे, तो मैं उससे सीखता हूँ रिस्पेक्ट के साथ। मैं ये नहीं कहता बेवकूफ माँ बापों के साथ वो क्या सिखाया मैंने, ये पढ़ाया मैंने, ये मुझे सिखा। आज प्रतीक मुझे बाइबल की बहुत सारी चीजें प्रकाश डालता है और मैं उसे कहता हूँ अच्छा प्रेज द लॉर्ड, थैंक गॉड मैंने नींव डाली, तरक्की तो परमेश्वर ही देता है और उसकी अपनी मेहनत, राइट। पर बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आप मत बनिएगा ऐसे पेरेंट्स की बच्चों को आप ये कह दो कि आप मुझे मत सिखा, ये एटीट्यूड। आप अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी सुनना, मैं ऐसा करता हूं, तो इससे आपका एटीट्यूड सीखने का हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं कि मैं खुद भी, अब मुझे बताइए प्रतीक ने किस सब्जेक्ट पर टीचिंग करी थी? जेनरसिटी, राइट। तो वो मैंने पहली बार सुना और मैंने सीखा, देखो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी वाइफ ये कहती है हाँ बेटे ने टीच किया ना, तो इसलिए लगे हुए, उन्होंने कहा नहीं यार इसमें गहराई पर तुम भी सुनो। तो उसने भी सुना, उसने कहा हाँ समथिंग न्यू। मैं कहा यार कभी कभी हम जो प्रचारक लोग होते हैं या जो बहुत कुछ सीख लेते हैं तो ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, पर ऐसा नहीं है, ये बड़ी जनरल सी चीज है। तो आप लोगों को मैं एनकरेज करूंगा कि इवन परमेश्वर, आप देखिए तितली का सीन में बड़े देर तक ये सोचता रहा अब तो खोल मेघना, अब तो खोल तितली आई कहां से, मैंने देखा तो मुझे क्या तितली बनाना चाह रहा है, तो डेफिनेटली मैंने कहा यार काम की बात अभी भी नहीं बता रही लड़की। क्यूरियोसिटी इसे कहते हैं प्रचार, ये डॉक्टर पास्टर एंजल ही सिखाते थे कि जब आप प्रीच करो सामने खड़े होके तो लोगों को ये हो जाना चाहिए कि आगे आओ जल्दी आओ, तो वो उठेंगे नहीं बार बार जो पेशाब करने जाते हैं ना उनको वो सोचेंगे यार ऐसा ना हो कि मैं वहां चला जाऊं और कोई काम की बात निकल जाए, जो सौरभ अभी मुझे कह के गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बाद में सुन लेना, ये तो आज ही रात तक क्या कहते हैं उस पे आ जाएगा व्हाट्सएप पे। तो उस तसल्ली के साथ गया, ये कह के गया, कान में दिल नहीं कर रहा जाने का। तो ये प्रचारक की खासियत होनी चाहिए, आप लोगों में भी होनी चाहिए जब आप कुछ शेयर करें आगे चल के। क्योंकि देखो अब राहुल आज बार बार बेटा ऐसे टाइम में तुम फेसबुक के साथ कनेक्ट हो जाओ, तुम्हारा फोन एंड्रॉइड फोन है ना, तो तुम जैसे बच्चों को लेकर प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, अपनी वाइफ को तुमने सुनने का मौका दिया और दोनों लड़कियों को तुम बाहर ले गए। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया, तुम कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरा तो टाइम निकल गया, मेरे तो बड़े बड़े हो गए, पर मेरे छोटे छोटे बच्चों को मेरी वाइफ संभालती थी, ये भी चिल्लाते रोते वो करते थे तो मैं भाग जाता था, मतलब आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं वही एडमायर कर रहा था। पर ऐसे टाइम में फेसबुक पे फोन को तुम जब अपने बच्चों को करोगे वो भी देखेंगी लड़कियां दोनों, तो बाहर बैठ के भी तुम ये इसीलिए है। हालांकि अमेरिका वगैरह में तो छोटा टीवी लगा देते हैं एक साथ वाले कमरे में, हम वैसा नहीं कर पा रहे। तो एनीवे कमिंग संडे मेघना विल यू कम, बिकॉज मैं चाहूंगा कि ये टीचिंग कंप्लीट होनी चाहिए। और मैंने मेघना को एक बात और बोली थी कि पिछले आने वाले संडे शायद तुम्हें आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं ये मिस नहीं करना चाहता मैं आऊंगा और बैठ के सुनूंगा, क्योंकि यहाँ बैठ के सुनने में मैं चाहूँ तो भाऊ होने के नाते कह सकता हूँ मेघना मुझे टीच कर, तो फिर मेघना अपना पॉइंट जल्दी जल्दी बताएगी। बट यहाँ बैठ के सीखने की बात ही कुछ और होती है, अनॉइंटिंग होती है, प्रेजेंस ऑफ गॉड होता है। तो जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे भी जो देख रहे हैं, जो बिलीवर्स आज यहाँ नहीं आए हैं और या जहाँ भी हैं, अगले संडे हम इस टीचिंग को रिले करेंगे, फेसबुक पे डालेंगे और क्या कहते हैं, क्योंकि
जब प्रत्येक यहाँ पर प्रेज एंड वर्शिप कर रहा था तो काफी लोग सुन रहे थे, मेरे रिलेटिव लोग जिन्होंने प्रतीक को गोद में खिलाया। तो देखो हैप्पी, और वो मुझे कमेंट्स आया कि ब्रिंग हिम ऑन द कैमरा। मैंने फटाफट देखा, मैं कैमरा तो कैमरे पे तो डाल रहा हूँ मैं, तो पता नहीं क्या वो मैसेज आया कि ब्रिंग हिम ऑन द कैमरा। तो एनीवे पीपल आर एंजॉयिंग, और मेरी ये मेहनत बेकार नहीं जा रही है। मैं सोच रहा था कि मैं फोन लटका के बैठा रहता हूँ ऐसे, और बार बार मैं स्टैंड लाना भूल जाता हूँ। तो एक स्टैंड प्रशांत अपन को एक खरीदना पड़ेगा ताकि तुम पूरा टाइम हम लगा दें उसको। और इसको लाइव करने का रीजन ये भी है कि मुझे बाहर से, कभी साउथ से, कभी बॉम्बे से भी मैसेजेस आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग दुआ करते रहिए मेहरबानी से। और हमारे चर्च की, जैसा आप जानते हैं, DFC चर्च की ना तो शुरू होने का कोई टाइम है, क्योंकि 2 बजे की जगह आज 3 बजे शुरू हुआ है, तो फिर खत्म होने का भी टाइम नहीं होना चाहिए। मैं तो मेघना को कह रहा था कि बैठा के रखा, जिनको देर से आए तो कंटिन्यू करो, तो इट विल बी अ पनिशमेंट कि देर से आए हो तो देर से जाओ। पर फिर मैंने सोचा कि एंड सबसे बड़ी टेस्टिमनी मेरी है कि मैंने इंटरसेसरी प्रेयर करते हुए ये प्रेयर करी थी कि ये खांसे ना, सेम है, राइट, बिकॉज़ ही वाज कॉफिंग लाइक एनीथिंग। तो मैंने कहा टीचिंग करते हुए प्रभु ये चीज नहीं होनी चाहिए। और मैं प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद देता हूँ कि, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं ये देता हूँ परमेश्वर को कि मैं अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। और ये बात आज फिर रिमाइंडर परमेश्वर ने दिया कि आप हमेशा वो मत करना रिलीजियस जैसे लोग होते हैं। मेघना ने साफ बताया कि जीसस इज ए फन, जीन्स में दिखा दिया। देखिए मुझे बहुत साल पहले पास्टर एंजल ने सिखाया था कि परमेश्वर आपको, जीसस क्राइस्ट आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार दिखेगा। तो अब आपको हो सकता है कोई और प्रचारक ये बताए कि मैंने जीसस को देखा सफेद कपड़ों में, नीली आंखें, गोल्डन बाल। बताया मुझे एक फॉरेनर ने कि मैं सारी रात क्या कहते हैं आसमान में था और मुझे सारे डिपार्टमेंट दिखाए परमेश्वर, उसमें उसकी रूपरेखा थी गोल्डन आंखें। तो मैं चाहता तो अगर नॉलेज नहीं मुझे होती तो मैं सोचता कि मेघना को फिर जीसस दिखा, कोई और दिखा। पर इसे बोलते हैं फिनोमिनल एक्सपीरियंस। फिनोमिनल, जैसे आग किसी जीवे दिखाई दी थी, दैट वाज द मिरेकल ऑफ द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। और फिनोमिना कि कुछ हो रहा है, कुछ चीज, क्योंकि पहली बार उतरा वो फिनोमिना था मूसा के लिए कि जलती हुई झाड़ी, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही। तो उसने ध्यान से देखा ये हो क्या रहा है, झाड़ी जल नहीं रही लेकिन आग है, राइट। तो वो सारी चीजें, ये एक फिनोमिनल एक्सपीरियंस हो रहा था मेघना को, तितली दिखा के फिर परमेश्वर ने काम की बात जैसे उसने बोली, कैटरपिलर वर्ड बोलते ही मुझे सारा नहीं समझ में आ गया। ओके, क्योंकि तितली जब अंडा देती है तो बड़ा सड़ा हुआ अंडा होता है। फिर वो कैटरपिलर को आप देख लोगे तो आप ये मेटामॉर्फोसिस, मतलब छोटी छोटी स्टेजेस, और वो जो चीज है वो सड़ा हुआ कैटरपिलर बाद में क्यूपा, तो उसके बाद वो बटरफ्लाई बनती है। तो दैट वाज द थिंग व्हिच गॉड वांटेड टू टेल हर। अब आप तितलियां देख के मत सोचना कि मुझे भी परमेश्वर ऐसे दिखाया। ये बड़ी दिक्कत है हमारे देश में कि अगर एक बंदा एक्सपीरियंस, इसलिए बोलते थे पास्टर एंजले भी कि अपना एक्सपीरियंस सिखाओ तो दूसरे लोग बैठ के सोचने लगता है मुझे आज तक कोई सपना नहीं आया, मुझे जीसस ने दिखाई दिया जीन्स में और टी-शर्ट में। तो मेघना को ज्यादा प्यार करता है जीसस से, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके लेवल पर वो समझो। आमीन आमीन। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे यहाँ बैठने के लिए। मगर क्या कहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग अगले संडे टाइम से आ जाएं, क्योंकि आज तो प्रदीप थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो मैं पूछ लो सौरभ और इन सब से क्या कह रहा था कि हमारी मीटिंग हमें 15 मिनट पहले खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि प्रदीप टाइम रह जाएगा। तो आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। तो अगली दफा हम ठीक 2 बजे प्रेज एंड वर्शिप 3 आदमियों के साथ शुरू कर देंगे। डोंट बी लेट, टाइम से निकलिए आप, क्योंकि अगर आप बस से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लेट हो सकते हैं, और मेट्रो से आ रहे हैं तो बिल्कुल टाइम से पहुंचा दीजिए।
तो प्लान इस तरह का करिए कि आप ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल मुझे अभी इंटरसेसरी प्रेयर करते हुए, आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरसेसरी प्रेयर करते हुए मुझे ये बताया परमेश्वर ने कि आप याद करिए, मैं मेघना के ही उस सब्जेक्ट पे रहना चाहता हूँ, यूसुफ को क्या सपना दिखाया था? फूलों के बारे में, खास तौर से फूले को 7 फूले खड़े हुए थे। फूलों को जो Bundles. बंडल्स, हाँ सर, वो इंग्लिश में पूरे लिखा है बाइबल में, पूरा ही लिखा है सर। पूरा है, हिंदी हाँ, में हिंदी फूल है में ना। तो पूरा लिखा है कि उसने जाके अपने भाइयों को बताया, क्या बताया था बताइए? सर कि तुम्हारे सारे पूरे पूरे जितने तुम लोगों ने खेती बाड़ी काटी और तुम्हारे फूले, अपने फूले बना लिए, सबके फूले खड़े हो गए। सबके खड़े हो गए और मैं मतलब मेरा फूला बीच में था और फिर सबके फूले झुक गए और झुक के वहां आपको इसलिए वचन याद होना चाहिए, तब सपना समझ जाओगे। उसमें उसने लिखा था कि 12 फूले और भी किसी का जिक्र था, माता पिता के भी 2 फूले थे। राइट सर। फ्रेंड्स के फूल। तो याकूब ने उसका मीनिंग बताया कि अबे बात सुन, तू ये कहने की कोशिश कर मेरे फूले के सामने सारे फूले झुक गए। राइट सर। राइट, आप पढ़िएगा घर जाके। जी। वो सपना पूरा कब जाके हुआ और उसे याद आया कि आज वो सपना पूरा हो रहा है, जब याकूब जब और उसके पूरे 12 भाई मिस्र में गए, क्योंकि बिन्यामीन को उसने रख लिया था कि जाओ जाकर अपने बाप को लेकर आओ। आकाल उसके 11 अकाल करें। भाई गए राइट सर। और अपने बाप को लेकर आए, और फिर क्या करा बाप ने और उस भाइयों ने? उसके सामने वो झुके। राइट सर। मिसिंग पार्ट क्या है, आप चेक करिएगा बाइबल में, मां नहीं। हाँ नहीं थी सर वो। सो बिलीवर्स, आपको मैं याद बता रहा हूं कि परमेश्वर बहुत सारे चमत्कार, जैसे आज मेघना के लिए प्रोफेसी परमेश्वर ने प्रोफेटिकली बताया है, तो कुछ ऐसे चमत्कार परमेश्वर कई बार कर रहा है और करता रहेगा, लेकिन आप लोग चर्च ना आके मिस हो जाता है। यानी कि परमेश्वर जो प्रोफेसी करता है वो पूरी, ये जो चीज मैंने आपको बताई है, परमेश्वर जो प्रोफेटिकली आपसे बात करता है उसे वो पूरा भी करना है, इसलिए करता है। लेकिन उस औरत ने, उसकी मां ने गुनाह करके उस टाइम के आने से पहले ही मर गई और वो फुलफिल नहीं हुआ, वरना वो याकूब के साथ वो भी जाकर उसको प्रणाम करती। दैट वाज इन द प्लान ऑफ गॉड। सो आप इस बात को ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। चर्च मिस करने वाले बिलीवर्स को मैं इंकरेज कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि कुछ काम परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का हर एक काम के लिए आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक समय है। ऐसा ना हो कि आपका समय आए लेकिन आप वंचित रह जाओ और आप चर्च मिस कर जाओ उस दिन, और क्या कौन सी ब्लेसिंग आपको ना मिले। तो इसलिए हम बिलीवर्स लोगों को, बाकी सारे धर्म के लोग अपने अपने पूजा पाठ, मस्जिद द्वारा, गुरुद्वारा सब बराबर करते हैं। आप एग्जाम्पल है हमारे पास में, लेकिन हम लोग परमेश्वर को बहुत इजी ले लेते हैं, टेक गॉड वेरी सीरियसली, बिकॉज हम लोग, मैंने आपको बताया ना, आपको मैंने बताया था एंड डेज, चेलों से यीशु मसीह ने के चेलों ने ये पूछा था कि अंत का क्या समय होगा। मैंने आपको क्या बताया, अंत कब शुरू हो गया? पेंटेकोस्ट के दिन से। द डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन ही उस दिन एंड शुरू हो गया, और मैंने आपको ये पूरी टीचिंग से आपको सिखाया। अब सोचिए आज उसको तो 2022 साल हो गए, तो अब हम कौन सी सिचुएशन में हैं? तो मेरी तरह ना जाने कितने खुदा के खादिम ये बात याद दिलाते रहे हैं, और परमेश्वर अपने खादिमों के द्वारा ये बात याद दिलाता रहेगा कि बी अलर्ट, बी केयरफुल, दुआ में, वचन में, प्रार्थना में हमें बहुत लॉ लगा के प्रार्थना करें। स्टूडेंट्स जब घर से बाहर निकल रहे, थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग मी करते हुए प्रार्थना करके
गॉड को आप ऑनर करें। खाना खाने से पहले आप मत भूलिए कि कौन आपको खाना दे रहा है, तो ऑलवेज जस्ट से थैंक यू। हमें लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, हमें कहना थैंक यू फॉर ब्लेसिंग दिस बर्गर, Yes. मैगी, व्हाटएवर, बट डोंट फॉरगेट टू प्रे एंड ब्लेस योर फूड, राइट। और हर इवन जैसे मैं रिया को बोलता हूँ कि ये मेट्रो से जाती है, तो जब स्टेशन पे खड़ी है तो हजारों की तादाद में वहां पे मेट्रो पे खड़े होते हैं, बट बिकॉज ऑफ वन बिलीवर गॉड विल टेक केयर ऑफ दैट ट्रेन, Right. राइट। बिकॉज वो ये कह रही थैंक यू लॉर्ड फॉर टेकिंग मी सेफ एंड सिक्योर, तो उसको थैंक्स कर दिया उसने, तो उसको सेफ एंड सिक्योर के लिए ना जाने कितने अनबिलीवर सेफ एंड सिक्योर जा रहे हैं। Yes. ये मान के आप प्रार्थना करके आप और प्रभु को हर चीज में अपना पार्टनर बना के आइए। ओके, सो धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एक्सीलेंट टीचिंग के लिए। और मैं जानता हूँ प्रभु, मैंने तो सालों से एक्सपीरियंस किया है कि जब जब तेरे भवन में मैं आया हूँ तो कुछ नया सीखा है। सो ब्लेस एवरीबॉडी, सबको आशीष देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये सब अपनी अपनी चमत्कारों को, अपनी चंगाइयों को, प्रभु हम जानते हैं कि हम जब तक जीवित हैं, जैसा मैंने इन्हें सिखाया है, आती हैं बीमारियां हमको चले जाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने थोड़े खा लिए हमारी बीमारियों का, उसने पूरा दाम चुका दिया। Yes, Lord. इसलिए ये सब क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर की वजह से इस तरह होता है, लेकिन धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो तू हमें दिन प्रतिदिन देता है। Yes, Lord. और अब हम सब सेफ एंड सिक्योर Yes. अपने अपने घर चले जाएंगे, और तू कंटिन्यूली हमसे बात करेगा, और प्रभु हर एक चीज पर तूने आशीष दी, इसके लिए तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। Amen.